Sarvabhutanam, of all living entities. Vidhi, try to understand. Partha, O son of Pritha. Sanatanam, original, eternal. Buddhihi, intelligence. Buddhimatam, of the intelligent. Asmi, I am. Tejaha, prowess. Tejasvinam, of the powerful. Aham, I am. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O son of Pritha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men. तो हम लोग अभी मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद we'll read the purport. Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण थोड़ा मंगलाचरण शॉर्ट रखा है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास. Okay. Purport. Bijam means seed. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures are moving living entities. Trees and plants, however, are inert. They cannot move, but only stand. Every entity is contained within the scope of 84 lakh species of life. Some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Krishna. As stated in Vedic literature, Brahman, or the Supreme Absolute Truth, is what from which everything is emanating. Krishna is Parabrahman, the Supreme Spirit. Brahman is impersonal and Parabrahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect that is stated in Bhagavad Gita. Therefore, originally Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything in its material manifestation. This is also confirmed in the Vedic literature. Katha Upanishad 2.2.30. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadhati Kaman. He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna. ओके, परफेक्ट से कुछ समझ आया आप लोग? कितने लोगों ने ध्यान से सुना? या सिर्फ मैं बोल रहा था और मैं ही सुन रहा था? किसी ने सुना परफेक्ट को ध्यान से? ओके, किसी ने भी नहीं सुना. ठीक है, चलिए. तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेक्चर में ना, अगर किसी ने भी नहीं सुना. ओके, तो सबसे पहली चीज, भगवत गीता ये प्रारंभ कहाँ से होती है? भगवान बता रहे हैं. किसको? अर्जुन को. चलिए, इतना पता है, बहुत अच्छी बात है. तो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान. अब भगवत गीता कोई भी समझ सकता है क्या? क्या लगता है आपको? यदि कोई समझना भी चाहता तो भी वो समझ सकता है. कैसे? किससे? लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के इसके बस ये सबसे महत्वपूर्ण है. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है. यदि आप देखेंगे सबसे अंत कहाँ पे हुआ है, भगवान यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रभुपाद ने अपने परपट में क्या लिखा है कि वन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर कृष्णा इज सेइंग. ये मतलब अब 7.10 के परपट के लास्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट विल बी लाइक थोड़ा हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा रिवर्स फ्लो लेके जाएंगे. तो unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of Godhead, Krishna. ये बोल रहे हैं यहाँ पे. ओके, अब होता क्या है कि अब भगवान देखिए किस प्रकार से भगवत गीता प्रारंभ कर रहे हैं. तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कि आप जो हो, आप ये शरीर नहीं हो. ठीक है, आप क्या हो? आत्मा हो. सबसे पहली बात. और ये किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि लिए जो शरीर है वो नश्वर है. जन्म होगा आपका, अब वयस्क होंगे, जवान होंगे, उसके बाद बीमारियां आएंगी, वृद्ध अवस्था आएगी और फिर मृत्यु हो जाएगी. ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में एक कोई तो ऐसा है हमारे देह के अंदर, जिसे देही कहा गया है भगवत गीता में, जो सारी चीजें देख रहा है.
आप देख रहे हो, अपने आप को देख रहा है व्यक्ति कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या फिर मुझे बीमारियां आ रही है, लेकिन वो इच्छा कम नहीं हो रही। जैसे एक कॉमन एग्जांपल दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो कोई ऐसा बोल सकता है क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी हो गई है, जो कि उसके शरीर को शक्कर या मीठा कुछ खाने से मतलब और ज्यादा बीमार होगा वो, यदि वो खाएगा, या फिर उसको ये खाने से मतलब रोक देती है। लेकिन इच्छा खत्म हो जाती है क्या? यदि किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी शक्कर खाने की? नहीं, नहीं ना। और या कोई भी ऐसी आप बीमारी बोल लीजिए, समझिए कोई स्पोर्ट्स में है और उसको इंजरी हो जाती है, राइट? तो वो इंजरी की वजह से क्या उसके अंदर की इच्छा खेलने की खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना। ऐसे कोई एस्पिरेंट है, बहुत सालों से तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, बहुत सालों से एक गोल पे टिका हुआ है, और समझ लीजिए वो एक बार उसमें परास्त हो गया या फिर उस एग्जाम में फेल हो गया, क्या वो छोड़ देगा कि नहीं अब तैयारी नहीं करनी इसमें? हम लोग देखते हैं आईएएस आईपीएस ये सारे लोग, अगर डेडिकेटेड लोग, हम जैसे बॉम्बे वाले लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको कुछ नहीं है, एक जॉब में एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां से रिजेक्ट हुआ, चलो दूसरी कंपनी में। बट आप देखेंगे जिन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता, जिन लोग डेडिकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही जॉब के लिए 10-10 15-15 साल तक तैयारी करते रहते हैं, राइट? डेडिकेशन होता है। तो उसी प्रकार से ये जो देही है, ये देख रहा है इस देह में कि ये अभी भोग किया इसने, और इतना भोग करने के बाद में अब जरा आगे मतलब वृद्ध अवस्था आ चुकी है, लेकिन फिर भी इसको एंजॉय करने की आवश्यकता। तो वो कौन है? वो आत्मा है ना। तो भगवान सबसे पहले ये स्थापित करते हैं कि देखो आप शरीर नहीं आत्मा हो। फिर उसके बाद आप आएंगे आगे के अध्यायों में, तो भगवान कर्म के बारे में बताते हैं। तो कर्म में भी कर्म क्यों बताया जा रहा है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले कर्म होता है, अच्छा, फिर उसके बाद में विकर्म होता है जो बुरा कर्म है। अब ये क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि यदि समझिए कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो क्या होगा, उसके जो पुण्य है या फिर उसकी जो पुण्य की, एक हिसाब से बोलता है ना कि उसका जो धन है, पुण्य का जो धन है, वो उपार्जित होते होते बढ़ता है और उसको उच्चतम लोकों में क्या मिलता है, आगे चल के रहने के एक सुविधा मिलती है उसको। और यदि वो बुरे कर्म करता है तो क्या होता है, उसके वो धन की वृद्धि कम होती, वृद्धि नहीं होती बल्कि वो घटता जाता है। और फिर उससे क्या होता है कि उसको जो नीचे के लोग हैं, जैसे पाताल लोग है, ये सारे लोग हैं, उसमें मतलब स्थान मिलता है उसको, जहाँ पे उसे बहुत कष्ट होता है। ऊपर तो वो भोग सकता है, हालांकि दोनों, चाहे वो कर्म करे या कर्म करे, उसको मतलब बोलते हैं ना विकर्म करे, सॉरी अकर्म तो अलग फिलॉसफी हो गया थोड़ा। तो दोनों में से दोनों भी अच्छे नहीं है जीव के लिए, क्योंकि ये दोनों का रिएक्शन है ना, कि यदि वो करेगा तो उसको उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि समझिए आप किसी गरीब को 1 रुपए का दान करते हैं ना, 1 रुपए का दान किया आपने, अब आपने वो पुण्य कर दिया। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग हैं जो देते होंगे गरीबों को देख करके, तो ये मैं नहीं बोलूंगा वो अच्छा या बुरा है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा भगवत गीता पढ़ने के बाद। वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो गरीबों को दान करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। तो शास्त्रों में दिया गया वो 1 रुपए का जो पुण्य है उसको भोगने के लिए वापस से आपको 84 लाख योनियों में से घूम करके आना पड़ेगा, 1 रुपए का पुण्य भोगने के लिए। वर्थ इट है? कोई बोलेगा कि मतलब 1 रुपया भोगने के लिए मैं आता हूँ 84 लाख स्पीशीज में ट्रांसमाइग्रेट करके वापस से ह्यूमन स्पीशीज में आता हूँ, राइट? तो उसी प्रकार से ये कर्मों के बारे में भगवान बताते हैं। अब अर्जुन को कर्म के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। अर्जुन क्या थे? अर्जुन क्षत्रिय थे ना, अर्जुन क्षत्रिय थे। उनका धर्म क्या था? युद्ध करना। युद्ध किसके लिए करना? एक छोटे से टुकड़े की जमीन के लिए, उसके लिए युद्ध कर रहे थे। या फिर कहीं सोना रखा हुआ है, गोल्ड रिजर्व है, वो एरिया को अकोमोडेट करने के लिए, या कोई न्यूक्लियर पावर है उसको लेने के लिए, कहीं चीप लेबर है उस लैंड को एक्वायर करने के लिए। जैसे कि हमारे मॉडर्न प्री हिस्टोरिक जो वॉर्स हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, जो कि एक्विजिशन के लिए हुए हैं प्रैक्टिकली, राइट? तो वैसे टाइप का वॉर था क्या महाभारत? नहीं ना। तो वो किस प्रकार का वॉर था? धर्म का, धर्म युद्ध था वो, ठीक है? तो धर्म युद्ध क्यों था? अब देखिए इसमें क्या होता है कि शुरुआत में चलो अर्जुन बहुत ज्यादा उत्साह रहता है उनमें, और बहुत ज्यादा अपने आप को बोलते हैं ना वो निष्ठ दिखाते हैं शुरुआत। अब देखिए ये सब लीला है, इसमें ये नहीं कि हम सोचे कि नहीं अर्जुन थोड़े कायर थे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ये हमारी शिक्षा के लिए है जो भगवान लीला करते हैं और उनके भक्त होते हैं जिसमें, ठीक है? तो शुरुआत में तो वो बोल देते हैं, लेकिन जब वो युद्ध के और निकट आते हैं, जैसे वो
बोलते हैं ना रण क्षेत्र के बीच में आते हैं, भगवान को बोलते हैं रथ को लेके चलो बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, कि मतलब पूरे सेना के बीच में खड़ा करो मुझे, देखने दो कौन कौन लड़ने आया मुझसे। तो इतना बड़ा संकल्प तो ले लेते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद क्या देख रहे हैं कि मेरे दादाजी भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे ये चलाना सिखाया, इतने सारे अस्त्र शस्त्र जिन्होंने चलाना सिखाया, वो कृपाचार्य जिन्होंने मेरा भरण पोषण किया, ये सब लोग हैं मेरे सामने, नाना प्रकार के इतने सारे रिलेटिव्स हैं, नात रिश्तेदार भाई बंधु, ये सब लोग हैं। तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा युद्ध करने से अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ ना कि संन्यास ले लेता हूँ, सब छोड़ देता हूँ और फिर संन्यास ले लेता हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है सही है, मतलब क्यों मारना किसी को, वायलेंट क्यों होना है हमको, कोई बोल रहा है मतलब सही है? आइडियोलॉजी तो अगर आप देखेंगे मॉडर्न डे के पीस से फिट बैठती है ना, गांधी जी भी सेम इस पे प्रिंसिपल पे एक्ट किए, अहिंसा परमो धर्म। तो अर्जुन के केस में गलत क्यों था? भगवान को बोल देना चाहिए था हाँ भाई सही है ये तो। बोलिए बोलिए, सोचिए, सेल्फ एक्सीलेंस प्रोग्राम का नाम है। एक ही जगह से आंसर नहीं आना चाहिए, कॉर्नर से सभी लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं है कि आपको गलत आंसर दिया तो यहाँ पे चेयर अलग से रखी हुई है, मुर्गा बना के खड़ा कर दिया जाएगा आप लोग। सोचा जाए तो गलत भी है एक तरफ से, हाथ ऊपर करके, क्लास है फिर भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखना आवश्यक है। सोचा जाए तो एक तरफ से गलत भी है और एक तरफ से सही, मतलब आप बोल रहे द्वंद है, सही भी है गलत भी है, लेकिन फिर ये शास्त्र जो है ये तो साधारण व्यक्ति के मनोबल, गलत उसके लिए जो उसको अभी अच्छे से नहीं जानता है, ये उसके लिए नहीं, लोक वृत्ति में नहीं देखना हमें शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, तो उस प्लेटफॉर्म पे रह करके आप लोग उत्तर दीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा सही ही होगा जो इन्होंने बोला, मैं ये नहीं बोल रहा पूर्ण रूप से गलत है, सही है, लेकिन उस लेवल पे आके बताइए। मतलब कि मैं अभी बुक डिसीजन के लिए गया था, हाँ, तो जैन धर्म वाले हमको मिले, हाँ, तो भगवान के बारे में अलग वो धारणा रखते हैं कि उन्होंने युद्ध किया, इतनी साजिशें की, वो पूरा तात्पर्य नहीं समझते। तो ऐसा ही है कि जो समझने वाले के ऊपर है और पढ़ने वाले के ऊपर है। प्रभु जी, क्योंकि बस लैंड ही मतलब बस टेक नहीं कर और वो अपने कर्तव्य से भी चूक रहे थे। गुड पॉइंट, यस। क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि हमें वो लेसन मिले कि अधर्मी के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जितने भी कौरव वगैरह थे वो सब अधर्मी थे। उन्हें अर्जुन को जमीन वगैरह नहीं चाहिए था, बट अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए। गुड पॉइंट। व्हाट्स योर नेम प्रभु जी? रुद्रांश। ओके, सो रुद्रांश प्रभु सेड कि जो भगवान थे वहां पे उनका मोटिव ये था मेजर कि जो अधर्म था उसके प्रति उनको क्या करना था, ये एक एस्टैब्लिश करना था प्रिंसिपल कि अधर्म चाहे कोई भी करे। यदि आप इसको देखेंगे और थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो ये धर्म के लिए युद्ध था। अब अधर्म किया हुआ था, अब अधर्म कौन करे ये मैटर नहीं करता ना, चाहे मेरा नात रिश्तेदार करे या मेरा घर परिवार वाला कोई करे। तो इसका मतलब ये नहीं जैसा आज के समय पे चलता है, हाँ भाई हम तो डीएसपी के लड़के हैं, तो तुमने रोड रैश किया या फिर स्पीड लिमिट तोड़ी है तो तुमको विदाउट फाइन छोड़ दिया जाता है ना। सब देखा जाता है बहुत जगह पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेंगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला नहीं आपको ये करना पड़ेगा ना। तो भगवान इसके लिए अर्जुन को कर्म के बारे में बता रहे हैं, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद अब ये क्या होता है कि भगवान ने कर्म के बारे में बताया, अब वो तो मना कर रहे हैं वहां पे, तो भगवान फिर अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं कि देखिए जो है पहले से हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट जाओगे तो ये मरेंगे नहीं या फिर इनको कोई मारेगा नहीं। ऑलरेडी उनको दिखा देते हैं शॉर्ट में, पूरा मूवी फास्ट फॉरवर्ड करके, देखो ये सब चीजें हो चुकी हैं। जब विराट रूप दिखाते हैं तो हर एक जन उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जितने भी वहां पे युद्ध करने वाले हैं। तो बोलते हैं आप सिर्फ निमित्त मात्र हो ना, यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ मीडियम हो आप, अगर आप नहीं रहोगे तो भी वो काम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए जो हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना, इसके आगे से भगवान फिर चालू करते हैं। तो इसका टाइटल क्या है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ चैप्टर का बिल्डअप कर रहे थे, इसमें है क्या, इसमें बताया क्या जाने वाला है। तो अब जो हमारा श्लोक है इसके अंदर भगवान क्या बोल रहे हैं कि I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful. Right? तो ये सबसे पहला बोलते हैं ना भगवान, मतलब क्लेम या फिर एक हिसाब से बोलते हैं एस्टैब्लिश कर रहे हैं इसको कि जो हूं मैं ही हूं,
जहां से भी आप देख ले, इतनी सारी वैरायटीज देख रहे हैं हम लोग, आजू बाजू यहाँ वहाँ इधर तिधर, हर एक चीज भगवान ही है, ये एस्टैब्लिश करते हैं इस श्लोक में। तो इसका महत्व यदि जानना हो तो हम लोग और आगे चलते हैं। अभी देखिए वहां पे तो ये चल रही थी बात कुरुक्षेत्र में, वक्ता थे भगवान स्वयं श्री कृष्ण और श्रोता कौन थे, अर्जुन, ठीक है, ये श्रोता थे। अब अर्जुन ऐसे वैसे कोई थे नहीं कि आप समझ लीजिए कोई हमारे ऐसा आर्मी का उठा करके डाल दो, ऐसे नहीं थे। तो अर्जुन ऑलरेडी इतना पुण्य कर्म था उनके पास में कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे वहां पे खड़े खड़े, कि सामने भगवान के खड़े थे ना। हम लोग भी भगवान के सामने रहते हैं, भगवान बोलते हैं कि मतलब नाम रूप गुण लीला ये सबसे मैं भिन्न नहीं हूँ, ये बोलते हैं भगवान। लेकिन हम लोग जब हरि नाम लेते हैं, आप में से जितने लोग चैंटिंग कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब आप सोचोगे दिन भर करते रह सकते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना, उसके बाद धीरे धीरे गोज डाउन। जैसे मॉडर्न एनोलॉजी यूज करते हैं, एनोलॉजी का मतलब ये है एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन समथिंग सिमिलर है। आप में से बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा जब स्टार्टिंग में सो कॉल्ड डिजिटल पेमेंट्स के एप्लीकेशन निकले थे, पेटीएम गूगल ये सब, तो आप लोग कुछ भी ट्रांजैक्शन करते थे फटाफट आप लोगों को कैशबैक्स आते थे, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए ना, ये सारी चीजें आती थी। उसी के चक्कर में क्या हुआ, उस बेट के वजह से लोगों ने और इंस्टॉल किया और करना चालू किया। देन व्हाट डिड दे गिव, दे गिव यू रेफर टू अ फ्रेंड ऑप्शन, कि अपने फ्रेंड को रेफर करिए 200 मिलेगा, 300 मिलेगा, और रीच बढ़ाई उन्होंने। फिर क्या किया, उन्होंने आपके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना चालू किया। When they started monitoring your transaction, उन्होंने देखा कि आप लोग सबसे ज्यादा पेमेंट्स कहाँ कर रहे हो, कौन सी साइट्स पे कर रहे हो। तो उन्होंने क्या सोचा, उस कंपनी के साथ टाई अप किया और आपको उसके कूपन्स देना स्टार्ट कर दिए, राइट, कि 100 रुपीज ऑफ ऑन सो ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट, और ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांड, और लेट्स से कोई किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, राइट, तो दिस मच pre-available balance in your credit card from our side of this particular bank, right? So I mean पता नहीं आप लोगों में से कितने ने ये ट्रेंड को नोटिस किया होगा, बट ऐसे ही वर्क करता है, इसको हनी ट्रैप बोलते हैं। धीरे धीरे देते 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 कब आपको फंसा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज हम लोग आदी हो चुके हैं ना उसके, हर जगह जाते हैं पेटीएम पेटीएम पेटीएम, कैश रहता नहीं है किसी के पास, सामने हमारे पास है सामने वाले के पास नहीं, सामने वाले के पास है तो हमारे पास नहीं, तो ये चीज है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, यदि आप देखेंगे कि इसको समझने के लिए भी बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। अब अर्जुन के पास इतने सारे पुण्य थे, वो खड़े होकर के वहां देख रहे थे, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि भगवत गीता ऐसे कोई भी नहीं समझ सकता ना, हर एक जन के समझने की बस की बात नहीं है। वरना यदि आप देखेंगे इतने सारे नाना प्रकार के, ऐसे इसमें बता रहे हैं ना, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सभी चीजों का बीज हूँ, और बीज में सबसे पहले क्या आता है, मनुष्य भी आता है, और फिर उसके बाद स्थलचर होता है, जलचर होता है, ठीक है, और फिर द्विपाद होता है, चतुर्पाद होता है, त्रिपाद होता है, त्रिपाद 3 लेगेड एनिमल भी होता है, पता है आप लोगों को 3 लेगेड एनिमल, कोई बता सकता है हु इज द 3 लेगेड एनिमल? ये पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ कि समोसा है अंदर जाता है, समोसा फिर 3 पैर में बाहर आता है, ऐसा नहीं। 3 पैर वाला एक्चुअल में एक ऑर्गेन या बोल सकते हैं आप, एक एग्जिस्ट करता है। कोई गेस करना चाहेगा? ओपन फॉर गेसेस, बट फूलिश गेस नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ही गया। एनीवन? नो, चलिए मैं रिवील करता हूँ। एन ओल्ड मैन, उसकी जो केन होती है उसको उसका 3rd लेग बोला जाता है, तो बुढ़ापे में he becomes a 3-legged person, so that's the one thing, right? तो होता क्या है कि इतने सारे जीव है ना, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आप जस्ट गेट के बाहर जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे मुक्तेश्वर मंदिर है, वहां पे गाय बांधी रहेंगी, कभी कभी बैल बांधे रहेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे फिश पॉन्ड है ना, तो आप लोग बैठ करके भगवद गीता बताएंगे क्या गाय को? कोई है? या फिर हम गाय को बुला के रखा है यहाँ पे किसी ने? नहीं। या फिश के पास जाके हम लोग बता रहे हैं, देखो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सीड गिविंग फादर हूँ, जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसका इंटेलिजेंस हूँ मैं, और जिसके पास पावर है उसकी प्रावेस हूँ मैं। समझ आया तुमको? कुछ रिस्पॉन्ड करेगा वो? नहीं ना। या फिर कुछ घास रखी हुई है, पेड़ है, किसी पेड़ को जाके भगवद गीता कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अब ये नहीं बोल रहा कोई कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है ना, कॉन्शियसनेस है लेकिन हायर कॉन्शियसनेस नहीं है, राइट?
तो हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, सबसे पहली बात। अब मनुष्यों में भी प्रकार हैं, जो आपके ट्राइबल लोग हो गए हैं, होता ना, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। अब सिविलाइज्ड में भी ऐसे लोग हैं जो अनसिविलाइज्ड हैं, मॉडर्न एजुकेशन है बट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। एंड इवन इन अनसिविलाइज्ड पीपल, हमारे मॉडर्न कंटेक्स्ट से इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जैसे हमारे आप दादाजी को देख लीजिए, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है मैक्स टू मैक्स 8वीं तक पढ़े होंगे, 7वीं तक पढ़े होंगे, लेकिन अध्यात्म जो उनकी रुचि है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बहुत ऊपर है। समझ रहे हैं? तो ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण जब ये भगवत गीता बता रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने ये ज्ञान दिया उनको। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया उसमें सबसे महत्वपूर्ण, कि जो ये ज्ञान है ये क्या है, आध्यात्मिक विद्या विद्याम च, कि मतलब जो सारी विद्या है सबसे श्रेष्ठ कौन है, आध्यात्मिक विद्या है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी, या फिर सो कॉल्ड क्लाउड इंजीनियरिंग, अभी तो साउंड इंजीनियरिंग भी है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ये जितने भी नए आगे आते रहेंगे उनमें भी सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या ही है। ऐसा नहीं कि आगे चलकर कुछ नया आ गया तो वो सुपरसीड कर देगा इनको, ऐसा नहीं है ना। अब देखिए 2 महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं, यदि आप लोग देखेंगे। अब ये तो चलिए हमें समझ आ गया कि ये पशु तो समझ नहीं सकता, या फिर और कोई प्रकार का जीव जंतु समझ नहीं सकता। इसको समझने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही चाहिए, जैसे कि अर्जुन थे ना। तो फिर अगर हम है नहीं, कलयुग में तो हमारा इतना बुद्धि है नहीं ना, हम भी जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी किसी और द्वारा सिखाया गया, इसीलिए हम कम कर पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी हो गए, या फिर बड़े बड़े महान आचार्य हो गए, ये सब तो मतलब गर्भ से निकलते ही चालू हो गए थे। समझ रहे हैं? उनको कुछ शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन सिर्फ भगवान की लीला में उन्होंने मात्र हमारे लिए उदाहरण रखने हेतु क्या किया था, लीला की थी। भगवान को गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं थी, अन्नप्राशन संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक समाज में रहना कैसे है उसको स्थापित करने के लिए भगवान ने किया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तर्क देने लगे, नहीं, भगवान ने तो किया था, तो निकलते ही भगवान। लेकिन भगवान की क्रियाएं भी वैसी थी, कुछ वर्ष की आयु में पूतना को मार गिराया, तो छोटी बात थोड़ी ना। पहाड़ों जैसा बताया गया उनको, मतलब उनके स्तन को 2 पहाड़ बताए गए, इतना बड़ा शरीर कितना बड़ा होगा सोचिए। तो अब बने तो बने कैसे ना, या फिर लक्षण क्या है। तो भगवद गीता में हमारे 2 फेमस श्लोक हैं ना। तो सबसे पहला क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर उसके बाद में अनन्यास चिंतयन्तो माम, मतलब ये भगवान बताते हैं, ये भी एक श्लोक है जिसको मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान इसमें प्रोसेस देते हैं कि देखिए, भक्ता माम अभिजानाति योम, चलिए इसमें भी ये भी याद नहीं आ रहा मुझको। तो इसमें भगवान मतलब क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मुझको कौन जान सकता है, जो मेरा भक्त है। भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, ठीक है। अब सब पूछेंगे भक्त का लक्षण क्या है ना। भक्त तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम शिव भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, हम ये भक्त हैं, हम वो भक्त हैं ना। देशभक्त भी बोलते हैं, हम देशभक्त हैं। तो उसको जाना कैसे जाए कि भक्त है कौन। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर एक और श्लोक आता है भगवद गीता में, द्वंद्व मोह समुक्ति। तो जो भी व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त रहता है, द्वंद्व मतलब समझते हैं आप लोग, डुअलिटी ना। रूम है, रूम में बैठे हैं आप लोग, एसी चल रहा है, ठंडा है, ठीक है। बाहर निकले, अंदर ठंडा था, बाहर गर्मी है ना, ये हो गया द्वंद्व। या फिर आप बोले कि हमें संडे के दिन आराम है, मजा आ रहा है, बट मंडे जैसे आता है, जॉब पे जाना होता है, बहुत तकलीफ होती है, ये होता है द्वंद्व, ठीक है। फिर यदि हम बीमार हैं और सेहतमंद हैं ना, ये मेरी बीमारी की अवस्था है, ये मेरी, जब मैं सेहतमंद रहता हूँ, ये वो अवस्था है ना, ये द्वंद्व है। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये द्वंद्व है। यदि आप देखने आएंगे, हम लोग कितने द्वंद्व में फंसे हुए हमें पता नहीं ना। अभी कोई व्यक्ति नया नया मोबाइल ले, से मैंने लिया है, तो ये मोबाइल अच्छी है, बाकी मोबाइल खराब है, ये लैपटॉप अच्छा है, बाकी लैपटॉप्स खराब है, तो ये होता है द्वंद्व। तो जो द्वंद्व से मुक्त होता है, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नहीं, बस वो भक्ति कर रहा है और स्थिर है उस प्रोसेस में, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है कि मतलब वो भक्त है जो भगवान की निष्ठा पूर्वक भक्ति करे ना। अब निष्ठा इतनी आसान है क्या लेके आना? कितने लोग बोलते हैं निष्ठा आसान है लेके आना, या निष्ठा है, हम निष्ठ हैं, बोलता ना, एक निष्ठ होना चाहिए, द फिश आई
कंसेप्ट बोला जाता है। अर्जुन को पूछा गया, द्रोणाचार्य जब सिखा रहे थे सबको तो बोल रहे थे देखो पेड़ पे वहां पे रखा, तुमको निशाना मारना है। तो हर एक जन को बुलाया, तो कोई बोल रहा मुझको पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा मुझको घास दिख रही है, कोई बोल रहा पत्तियां दिख रही है, कोई बोल रहा है घर परिवार दिख रहा है, किसी ने तो बोले गुरुदेव आप ही दिख रहे हो मुझको वहां पे। ठीक है, तो फिर अर्जुन आते हैं, जब बोलते हैं वहां पे निशाना मारना है तो क्या बोलते हैं कि क्या दिख रहा है तुम्हें? बोलते फिश की आंख पे लगाना ना, तो आंख ही दिख रही है मुझको, चिड़िया की आंख पे वही दिख रहा है मुझको। बोले ठीक है शाबाश चलो चालू करो। तो उनको शूटिंग का चांस मिलता है, ऐसा नहीं बाकी लोग कंपैटिबल नहीं, थिंकिंग पे ही रोक दिया। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, चलो साइड हो जाओ। ऐसा नहीं चलो ठीक है अच्छा मार लो तुम भी। तो स्किल तो सबके पास है, आइडियोलॉजी किसके पास है किसी, मेंटालिटी किसके पास है? अच्छा तो सब कर रहे हैं लेकिन क्या सोच के कर रहे हैं? मैं भी बहुत सारे, आप देखेंगे बाहर इतने सारे एनजीओज हैं, इतने सारे बच्चों को फीड कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर रहे हैं। हम भी इस्कॉन में वही कर रहे हैं ना, लोगों को खिला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे हैं। तो उनमें हमारे में अंतर क्या है, कोई बताना चाहेगा? आप लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं, तो आंसर तो दीजिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए। एक मिनट, वो आंसर देंगे। We are giving them prasadam. हाँ And other are giving them just normal food. और उससे वो खाने से उनको कर्मा लगेगा, वो फूड खाएंगे। जब वो प्रसाद खाएंगे तो उनका कर्मा नहीं लगेगा ना। ये तो कर्म के लेवल पे हो गया, लेकिन हाउ इज दिस, हमारा जो एजुकेशन है एंड प्रसादम, इज इट ओनली अबाउट कर्मा और देयर इज समथिंग एल्स? स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, इट वाज राइट, करेक्ट टू एन एक्सटेंट, इसको रॉन्ग नहीं बोले, करेक्ट है फुल एक्सटेंट पे। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हाई है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप गलत बोल रहे हैं। नॉलेज मतलब सिर्फ मटेरियल लाइफ में ही खत्म हो जाता है। हां, स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप जो नॉलेज दे रहे हो प्रभु, इसके आगे भी काम आएगा। और फिर मतलब यहाँ पे जो प्रभुपाद नॉलेज दे रहे हैं वो आगे इसको मैं भी बोल सकते हैं कि बाहर के जो लोग हैं सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ दूसरे आदमी से लेना है। हाँ, इस समाज में दिखाना है कि मैं ऐसे सेवा कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए, कोट चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए ऐसे। लेकिन जो हम सेवा कर रहे हैं तो किसी से ऐसा नहीं है कि हमको ये चाहिए। अच्छा, तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ परीक्षित को बोलिए। It's that they are trying to be God conscious, वो भी God conscious है, but they don't have the knowledge. ओके, ये अच्छा, गुड। Basically, the other people they want to gain the punya basically. हाँ, पाइटी। Devotees are selfless. ओके, बाहर जो मतलब दान करता है, जो लेता है, उसको सिर्फ उस वक्त की नीड, वो अगर भूखा है उसको खाना नहीं, उस वक्त की नीड सिर्फ कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके साथ प्रसादम मिलता है, उस प्रसादम से he can get his soul sanitized. ओके, गुड आंसर। मतलब बाहर वो एनजीओ से शरीर का पोषण करते हैं और यहाँ पे आत्मा का पोषण। सेम लाइंस पे। प्रभु जी, और वहाँ पे मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन है परमानेंट प्रॉब्लम की, और यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन एंड टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ओके, बोलिए। लोग वो बाहर के लोग लोग पाप दे रहे हैं, क्योंकि रोमन बोलते हैं कि भूख लगी नहीं था तो वो पाप कर रहा है। अच्छा, ठीक है, गुड गुड। हाँ बोलिए। सबको बैक टू गॉड हेड भेज रहे हैं आप, भेज रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। हम जाएंगे क्या? मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जाऊंगा। मैं प्रभुपाद के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन अगर मैं अपने एंडेवर्स को देखूं तो मुझे तो नहीं लगता मैं जाऊँ। लेकिन अच्छा है, आप प्रयास कर रहे हैं, बैक टू गॉड, इट्स गुड। ऐसा कोई डिमीन नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वीक चल रहा है, जो ऑनलाइन पे डिवोटीज, आप लोग भी टाइम निकाल कर आइए, ऐसे आप लोग भी अपना हैंड दीजिए, निमित्त बनिए। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने मिशन एस्टैब्लिश कर दिया है, कौन आना है, कौन जाना है, कौन किसको कहाँ लेके जाना है, एस्टैब्लिश्ड है, बस आप निमित्त बनिए, आपको सिर्फ बेनिफिट लेना है उसका, ठीक है। तो आप में से भी जितने लोग नहीं आते हैं, लास्ट क्या आई गेस 3 दिन है ना प्रभु, फ्राइडे सैटरडे संडे, राइट, 3 दिन है, तो आप लोग भी जोरों शोरों से थोड़ा आके हेल्प कीजिए, ऐसे डिवोटीज को असिस्ट कीजिए, लाइक सभी लोग, टू सेंड देम बैक होम, बैक टू गॉड, राइट। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे ना। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बाहर हैं लोग, मतलब हम भी दे रहे हैं टेंपल में ये सारी चीजें,
लेकिन अब आपको एक चीज देखना पड़ेगा, क्या पता है कि एनजीओ जो है ना, एनजीओ दे आर रनिंग फॉर अ मोटिव ना, उनका एक मोटिव है, दे आर जस्ट लिमिटेड टू वन एस्पेक्ट कि चलिए कोई फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और क्या सबको प्रोवाइड करते हैं वो? और डू यू थिंक कि लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं जिनको वो मिल रहा है? आर दे रियली अंडर प्रिविलेज्ड? नहीं। तो उनका क्या है, एक हिडन एजेंडा है, राइट? दे आर हैविंग अ हिडन एजेंडा। लेट्स से इवन इफ दे आर डूइंग इट जेन्युइनली भी करा रहे हैं, तो भरण पोषण किसका कर रहे हैं? मात्र शरीर का कर रहे हैं ना। हमने शुरू कैसे किया, जो अभी का डिस्कशन था, भगवान क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? सबसे पहले क्या बता रहे हैं अर्जुन को? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस सोल, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप शरीर को खाना पीना मत दो, बस हरि नाम करते रहो, कुछ करते रहो। उसके लिए भी अल्टरनेटिव है, प्रसादम है हमारे पास में, राइट? लेकिन ये सिर्फ शरीर को देख रहे हैं। अब उसमें अब देखेंगे कर्म का फिलॉसफी तो आता है, उस पर डिस्कस करने जाएंगे, इट विल गो लाइक रियली लॉन्ग, वी हैव ओनली 20 minutes, राइट? बट इन व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर फॉलोइंग द परंपरा, राइट? हम में से बहुत लोग हैं, आप में से जितने लोग चैंटिंग करते हैं, कोई कोई आप लोगों का ऐसा डे होगा स्पेसिफिक, बोलते हैं ना लो डे होता है, इच्छा ही नहीं हो रही, जब करना ही नहीं है, जब करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग उसके अगेंस्ट जा करके आपका सेट राउंड्स है, भले वो इनअटेंटिव हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्टिल आप 8 राउंड्स करोगे ना, डिटर्मिनेशन से। क्यों कर रहे हैं? आप आते हैं यहाँ पे तो महीने के 30 तारीख को आपको बुलाया जाता है क्या नीचे, ये लीजिए आपका सैलरी, कहीं कॉर्नर में बुला करके दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं दिया जाता ना। क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल करके, 1 घंटा आ रहे हैं, बहुत लोग ट्रैवल करते होंगे, 1 घंटा और 2 घंटे हो गए। नॉर्मली एक व्यक्ति जॉब करता है 8 घंटे, 1/4 of his time. Let's say you are earning 600 somewhere around basic pay scale of a person in a day, right? तो 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखने जाए ना, तो आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी अटेंशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? कोई सो तो नहीं रहा यहाँ पे, सब जाग रहे हैं, ठीक है? एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अटेंटिव है आप लोग, सुन रहे हैं इसको, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, राइट? तो फिर क्यों कर रहे हैं? हमको तो कुछ मिल नहीं रहा ना। लेकिन हम लोग हायर इंटेलिजेंस पे एक्ट कर रहे हैं कि हमको जो यहाँ पे मिल रहा है ना, वो अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे या कोई कंपनी हमको पैसे भी देगी ना, तो भी वहां नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये नॉलेज क्या है, गुह्यतम है ना? इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? राज विद्या राजगुह्यम, एकदम गुह्यतम है, सब नहीं समझ सकते हैं इसको, भले सबके लिए अवेलेबल है ये ना। जैसे हीरे का खान होता है, उसमें पूरा हीरा ही हीरा है, जो डायमंड माइन बोलते हैं ना हम लोग, हीरा ही हीरा है वो। लेकिन जब वो कवर्ड रहेगा, हम उसको पत्थर समझ के फेंक देंगे, लेकिन जब आप जोहरी के पास लेके जाएंगे ना, जिसके पास वो विजन होता है, उसको देख के बोलते हैं भाई ये बहुत कीमती हीरा है, राइट? सिमिलरली इतनी ये भगवत गीता हम लोग लेके जाते हैं, हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, हमारे बुक स्टॉल्स में पड़ी रहती है, लोग देखते हैं आकर के, लेकिन सब अनदेखा करके चले जाते हैं, दे डू नॉट नो द वैल्यू, राइट? सो दिस इज व्हाट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड ओवर हियर, व्हाट कृष्णा इज सेइंग, राइट? तो अब आप देखेंगे, अब हर कोई तो उस लेवल पे नहीं है ना, उनके जैसा मतलब पुण्य हो किसी के अंदर, कोई उतना धर्मवान हो, राइट? ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे, अब आज का युग ऐसा है, कलयुग, कि यहाँ पे पायस होना या फिर रिलीजियस होना एक क्या है, बैकफायर है। यदि आप बहुत अच्छे होंगे ना, तो भी आपको ठगा जाएगा। आप बहुत रिलीजियस हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को ठग नहीं रहे हैं, तो आप क्या है, एक डाउन साइड पे। बल्कि हमारा मॉडर्न एजुकेशन बताता है कि भैया आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, आपको चीट करना ही पड़ेगा सामने वाले को, ऑन द नेम ऑफ बिजनेस या फिर ऑन द नेम ऑफ टैक्टिक फॉर योर ओन लाइवलीहुड। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, वही वाला सिस्टम, राइट? या फिर हमको किसी ना किसी को चीट करना ही है इन वन मैनर और अनदर, राइट? इतने सारी चीजें हैं बाहर, इतने सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए, इतने सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए, इतने सारे सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने हायर कर रखा है, किस लिए? जस्ट टू मेक फूल आउट ऑफ यू ऑन अ बिगर स्केल। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नाम आ गया तो मतलब हम हमारा कुछ बोलते हैं ना, लाइक वी वोंट बी कट ऑफ, वो तो होने ही वाला है, राइट? तो यहाँ पे ऐसा है कि इस युग में, युग में हम लोग क्या है, अधम है, अधम जीव है, मंद सुमंद मत, हमारा मार्ग है, ठीक है? चलिए पकड़ लेते हैं, मार्ग पकड़ लेते हैं।
कितने मार्ग है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ठीक है, कर्म योग पकड़िए। अब कर्म योग में क्या होता है? आपको दान दक्षिणा करनी पड़ती है लोगों को, ना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, पंडितों को गौओं का दान करना। कोई है कर्मयोगी यहाँ पे जो ये करता हो? हर एकादशी पे एक मटका सोने का भर के ब्राह्मण को दान करना। हमारे पास ही नहीं है, एक मटका क्या, कुछ तोला ही नहीं है हमारे पास, क्या दान करेंगे? ठीक है, कोई नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब पकड़ लीजिए आप ध्यान योग। ध्यान योग मतलब एक जगह पे स्थिर बैठ करके सांस पे नियंत्रण करके प्राण, अपान, व्यान, उदान, सम्मान, ये मतलब अलग अलग टाइप के एयर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, ये दोनों एयर को बैलेंस करते हैं अंदर, और बाहर एक्सटर्नली वो सांस लेता ही नहीं है। कोई है यहाँ पे कर पाएगा? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट पानी के अंदर नहीं, यहीं बैठे बैठे 2 मिनट कोई कर पाएगा सांस के ऊपर कंट्रोल? ट्राई मत करिए, उधर पे ध्यान चला जाएगा। अभी यहाँ पे घर पे जाके ट्राई करिएगा, ठीक है? नहीं कर पाएंगे। ज्ञान योग मतलब इतना परिश्रम करना, स्वयं के इंटेलिजेंस से वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारी चीजें पढ़ करके एक निष्कर्ष पे आना। कोई है इतना पढ़ लिख पाएगा? नहीं। कितने लोगों ने मात्र भगवत गीता एक बार पढ़ी है पूरी कंप्लीट? सोचो, 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, वो भी वो रेगुलर आते हैं इतने एसोसिएशन में। परीक्षित को चलो 3 लोग, वो लोग रेगुलर आते हैं समय से ना, तो ज्ञान योग भी उड़ा दो। तो हमारे लिए बचा क्या? मात्र भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग इतना सिंपल है कि लोग भरोसा ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं होता लोगों को कि भैया ये करने से मिल जाएगा जो हमको चाहिए, राइट? तो यदि आप देखेंगे, हम करे तो करे क्या? ये सब हम कुछ कर नहीं सकते। अर्जुन जैसे अपने धर्मों का भी पालन नहीं कर सकते। अब तो हम लोगों को पता ही नहीं हमारा धर्म है क्या। कोई बता सकता मैं सरनेम हटा दो लीनियज से, भैया हम क्या है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, या फिर बोलते हैं ना ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं? कोई बोल सकता है कि भैया मैं जन्म से तो यही हूँ प्रभु जी, मैं ऐसा? कोई बोलेगा? कोई नहीं। मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अब भी बोल सकता हूँ, राइट? प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ मैं अभी क्या हूँ फिलहाल, लेकिन अभी तक संस्कार नहीं हुए, इसलिए बोलना अच्छी बात नहीं है, आगे का किसको पता, ठीक है? तो उसी प्रकार से हम ये बोल नहीं सकते। तो चैतन्य चरितामृत में यदि आप देखेंगे तो ये प्रसंग आता है। प्रसंग किसका आता है? 2 एकदम बोलते हैं ना अधम लोग। अधम मतलब शास्त्र के अनुसार, हमको नहीं देखना वो गिरे हुए हैं, भगवान के पार्षद हैं, जय विजय हैं वो। उनका नाम था जगाई मधाई, ठीक है? उनको लिबरेट किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने, यदि आप देखेंगे, बोलते हैं ना, भगवान ये स्वयं बोलते हैं, हरेर नाम इव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। भगवान ये बोल रहे हैं। तो पहले बोलते हैं हरेर नाम इव केवलम, 3 बार बोलते हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, मात्र यही। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति 3 बार बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बोलते हैं ना, बाहर के समाज में यदि आप देखेंगे किसी चीज को कंफर्म करना हो, दूसरे लोग क्या बोलते हैं? तलाक 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 3 इसमें कंफर्म, 3 नंबर। इसी प्रकार से कहाँ से आए? यहीं से आए। कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा, इसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। नथिंग इज, मतलब यहाँ पे कलयुग में और कुछ पॉसिबल है ही नहीं। यज्ञ कर नहीं सकते, शुद्ध घी है ही नहीं, डब्बे पे लिखा प्योर घी, लेकिन सबको पता क्या क्या रखा है, डाल रखा है, ये डाल रखा है, वो डाल रखा है, ठीक है? ये सारी चीजें पता है हम लोगों को। तो ये है नहीं, ब्राह्मण है नहीं उच्चारण करने के लिए, शुद्ध ब्राह्मण है नहीं, या किसी की जिह्वा उतनी साफ नहीं है। 4 श्लोक लगातार भगवत गीता के रिसाइट करने बोल दो बिना रुके, वही टंग स्लिप हो जाएगा। यही श्लोक नहीं बोल पाएंगे तो फिर बाकी पुराणों का या फिर इतने कठिन कठिन जो श्लोक है वो भी मीटर में बोलना पर्टिकुलर बोल तो सकते नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान ने जगाई और मधाई का उद्धार किया, सिर्फ ये हरि नाम दे करके कि आप लोग क्या करिए, मात्र हरि नाम लीजिए, इस हरि नाम से ही सब कुछ तर जाएगा आप लोग। भगवान ऐसा स्वयं बोल रहे हैं। और इसमें भी चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, भारत भूमि ते जन्म जयला जार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। मतलब अब ये तो हम लोग समझ गए हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? और इसके ऊपर भी क्या आता है, पहले खुद का लाइफ सफल करो। शास्त्रों का इंजंक्शन है कि भारत जो है, जो भारत भूमि है,
यदि आप देखेंगे तो यदि आपका जन्म यहाँ पे हुआ है तो आपका जन्म किसके लिए हुआ है? पहले अपना जीवन सार्थक करो इस भजन मार्ग से, भक्ति मार्ग से, भक्ति करके अपना जीवन सफल करो और फिर जाकर के लोगों पे परोपकार करो। वी आर नॉट अ लूटिंग कंट्री ना, वी आर समवन हु हैव बीन लूटेड मटेरियल एस्पेक्ट्स या फिर मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। 14 बार गजनी आया, वो हाथी घोड़े भर भर के सोना लेके गया 14 बार, हिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतना सोना था, इसीलिए सोने की चिड़िया बोली जाती थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यदि आप देखने आएंगे, लेकिन एक चीज कोई चुरा ही नहीं पाया कभी। क्या था? कल्चर, रियल कल्चर, सनातन धर्म बोलते हैं, और वैदिक नॉलेज। बहुत सारे लोग हैं। और ये भी देखिए, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भर, जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा, दिस इज लाइक वी आर जंपिंग ऑन द पास्ट टाइम्स बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भागवत ग्रंथ, भागवत पढ़ने में इतनी रुचि नहीं होगी, लेकिन भक्त भागवत के सुनने में, उनके बारे में सुनने की बहुत रुचि होती है। ठीक है, तो उनको पूछते हैं कि आप मतलब वहां पे भी रह के भजन कर सकते थे, आप यहाँ क्यों आए, यहाँ पे क्या करना है? तो आदमी ने बोला, आप ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत अच्छे से लूटा है, बहुत सारी चीजें लूटी, कोहिनूर सब लेके गया, ठीक है, लेकिन जो लूटना था वो तो लूटा ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, तो मैं वो देने आया हूँ। सब सस्पेंस में आके क्या दे रहे हैं भाई, हरि नाम, भक्ति देने आया हूँ मैं, ये लीजिए। करोड़ों रुपए, मिलियंस में गवर्नमेंट खर्च कर रही थी टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ LSD यूएस में। आप लोग देखेंगे हिपी एरा में, व्हाट डिड प्रभुपाद डू? नथिंग, गिव देम हरि नाम। द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर मूवमेंट वाज हरि नाम। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, उसके नीचे प्रभुपाद बैठ के क्या किए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्चर दिए पेड़ के नीचे बैठ के? नहीं, just sang the holy name. That's what happens when you hear the holy name from a pure devotee. Right? हम लोग जाते हैं टेम्पल में, भी आप लोग आए होंगे 8 बजे 9 बजे, जब पट बंद होने वाला था, प्रभुपाद के कीर्तन लगते हैं। प्रभुपाद सिर्फ जो हम लोग सेम ट्यून गाया ना, मैंने भी वही ट्यून गाया, रेसिप्रोकेशन। देखिए आप लोगों ने ऑटोमेटिक क्या, क्योंकि प्रभुपाद, जब प्रभुपाद सिर्फ हरे कृष्णा, जब प्रभुपाद इतना चालू करते हैं ना, प्रभुपाद वो स्पीकर से ज्यादा लोगों की आवाज आती है ऑटोमेटिकली, कोई पे नहीं कर रहा उनको सिंक में गाने के लिए। बाहर ऑर्केस्ट्रास लगते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेज शोज होते हैं सिंक में जाने के लिए। हमारे भक्त जब डांस करते हैं इस ट्यून पे, सबके सब एक फ्लो में आते हैं, ऐसे नहीं कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है, कोई कोरियोग्राफ नहीं करता। क्या चलो चक्रा हॉल में कोरियोग्राफी सेशन है, 1 घंटा प्रैक्टिस सेशन, कोई नहीं करता। इट बिकम्स ऑटोमेटिक बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द सोल, एटर्नल नेचर है उसका, स्वभाव है उसका। उसके लिए आपको किसी को पैसे नहीं देने होंगे ना। भूख लगी है तो कोई आपको पैसे देगा क्या, भैया चलो खा लो। हमें भूख लगी, हम भले दे दे किसी को, भैया चलो खिला दो, लेकिन हमें लेने की आवश्यकता नहीं। हम जाएंगे अपने, मतलब बोलते हैं जो हमारा पोजीशन है उस पर जाके बैठ जाएंगे स्टेज पे, ठीक है। उसी प्रकार से जीव जो है अभी कंडीशनड है, हम सभी लोग कंडीशनड है, इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। चलो अगर डिस्टर्ब नहीं भी है ना, तो भी स्मार्टफोन्स है, बहुत अच्छे मीडियम है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स हो गए, सो कॉल्ड यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें हो गई। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे हमारे पास यंत्र हैं मॉडर्न एरा में, राइट। छोटा सा डेंट आ जाए गाड़ी पे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। एक व्यक्ति के साथ संबंध टूट जाए, डिप्रेशन में चला जाता है इजीली, राइट। एक एग्जाम में फेल हो जाए, सुसाइड कर लेता है। कितना सिंपल है ना, तो भी लाइक दैट। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो 84 लाख स्पीशीज से होते हुए तब यहाँ आया है, तब उसको ये बर्थ मिला है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग ना। नॉलेज मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, अभी भी हम में से कितने लोग उसको अप्लाई करेंगे जाने के बाद। आप में से कितने लोग चैंटिंग नहीं करते हैं, हाथ उठाइए। टैक्स नहीं, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ हाथ उठाना है। चैंटिंग जो नहीं करता है, भगवान का नाम आप लोग माला के ऊपर नहीं लेते। ये नहीं आप कोई सोच रहा मैं तो मन में भगवान का नाम लेते रहता हूं, तो मैं जप कर रहा हूं भगवान के नामों का। आप लोगों में से कितने लोग जप नहीं करते हैं? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 रोज आप तो रेगुलर आ रहे हैं बहुत समय से। यूज्ड टू डू इवन करता हूं, बट एक ही राउंड करता हूं विद माला एंड विदाउट माला, ऐसा। ठीक है, तो आप में से इतने लोग जपा नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कितने लोग हैं जो 4 माला से कम करते हैं?
जपा कर रहे हैं लेकिन 4 माला से कम करते हैं। हैंड्स अप, अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोगों को पता है मिनिमम 16 राउंड्स करना चाहिए? कितने लोगों को पता है कि मिनिमम 16 राउंड्स करना ही चाहिए हमको? अब इसमें से हाथ वही नीचे करेगा जो 16 राउंड्स करता है। जो 16 राउंड्स करता है, हाथ अच्छे से ऊपर कीजिए, अच्छे से ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग प्रोपोर्शन देखिए, आप में से अब इनमें से कितने लोग ऐसे जो 2 महीने से ज्यादा आ रहे हैं प्रोग्राम में? वही लोग हाथ ऊपर रखेंगे जो 2 महीने से ज्यादा आ रहे हैं प्रोग्राम में, वही लोग हाथ ऊपर रखिए जो जप नहीं करते हैं 16 माला। देखिए आप लोग अपना रेशियो देखिए, हाथ नीचे कर लीजिए। सबको पता है, हर लेक्चर में सुन रहे हैं ना, 16 राउंड्स करना है मिनिमम। हम आपको स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे 16 राउंड्स करिए, ब्रेक इट इनटू साइकिल्स ना, एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं 4-8 माला मैंने कर लिया, आज एकादशी अच्छा है, आषाढ़ी एकादशी, संकल्प लीजिए आज 4 राउंड करेंगे हम। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद की बुक्स रीड करते हैं डेली? हाथ ऊपर कीजिए, अच्छे से ऊपर कीजिए, डेली एक पैराग्राफ ही क्यों ना पढ़ते हो, एक पैराग्राफ ही डेली। गलती से सोशल मीडिया पे पैराग्राफ आ गया वो पढ़ लिया, वो नहीं बताना। वो हाथ में रख करके या गीता बेस ओपन करके जो पढ़ता है वो हाथ नीचे कर लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मावलोकन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ गेजिंग इन इंग्लिश यू कॉल इट, राइट। तो ये करना है हमको, किसी और के लिए वेट नहीं करना है, भैया आएगा बताएगा लेके जाएगा, किसी के लिए वेट मत करिए। आप लोग भक्ति करिए, जीवन सफल कीजिए अपना। तो ये हरि नाम की महिमा है। अब हरि नाम जहां आता है ना, तो हरि नाम के बल पे मात्र जो ध्रुव महाराज थे, 5 वर्ष की आयु में भगवान को जीत लिया था। He conquered the unconquerable। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए भगवान का नाम है अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता। ध्रुव महाराज 5 वर्ष कॉन्कर कर लिया, भगवान को मजबूर कर दिया प्रकट होने के लिए सामने। कीजिए ना भक्ति, क्या दिक्कत है? हरि नाम लीजिए, भगवान को मजबूर कर दीजिए। एकादशी है, संकल्प कीजिए। मेरा भी देखिए उतना जितना राउंड्स करना होता है एकादशी पे, जैसे 25 राउंड्स, बट हम लोग का इंडिविजुअल गोल होता है। मैं भी वहां तक रीच नहीं कर पाया, लेकिन जो हम लोग सेशन सुनते हैं या सेशन हमको देने का मौका मिलता है, शिक्षा दोनों के लिए होती है। ऐसा नहीं जो इस साइड बैठा ही इज द वन हु हैज ऑलरेडी लर्नड, बोथ आर लर्निंग। सो व्हेन आई आस्क यू ऑल, आई सी माई सेल्फ देयर। क्या चलिए, मैं भी एक टाइम पे ऐसे करता था, वो बात अलग थी। डिवोटीज प्रे करते थे मेरे लिए, आपके लिए भी डिवोटीज प्रे कर रहे हैं, लेकिन टैप इन करने का आप लोगों को पता नहीं कैसे वो टैप इन करे उस मर्सी में, राइट। तो मेरे ऊपर डिवोटीज की मर्सी थी जब मुझे फर्स्ट बीट मिली। मैं शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर एम्पावरिंग यू, मेरी ग्रेटनेस नहीं बता रहा मैं। ऐसा लगेगा भी तो भी आप लोग ऐसा मत लीजिएगा। हर एक जीव का टेंडेंसी होता है अपने आप को ग्लोरीफाई करने का, मेरे अंदर भी है, कंडीशनड लिविंग एंटिटी। सो my first beads were given to me by His Grace रासपरायण प्रभु। तो प्रभु जी ने, मतलब मैं आ रहा था, 1-2 हफ्ते हुए थे कुछ, उन्होंने जब का पूछा था, तो मैंने हेजिटेशन होती है थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में, कैसे जब कर ले, ऑफिस जा रहे हैं, घर पे बैठे बैठे माला में हाथ डाल के बैठे रहे। तो मैंने बोला कि करते करते डिले करते करते एक दिन बोला, अरे कर लो ना, जब करना ही है तो बोले ठीक है मैं सब कुछ तुम्हें लेके देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा नॉर्मल लेंगे, बीड्स दे देंगे प्रभु जी। प्रभु जी ने वो बीड्स लिया, एक दिन पहले बीड्स लिया, उसको क्या किया, जा करके राधा राज बिहारी को ऑफर किया वो बीड्स। अब भगवान जब हम लोग कुछ ऑफर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसको लेकर के भगवान के चरणों में रखा जाता है। तो वहां से फिर वो बीड, मैं शाम को 8:30 और 8:45 में आया था जॉब से टेम्पल, और फिर उन्होंने मुझको एक ब्राउन पेपर बैग में उसको रैप करके दिया था, इसमें तुलसी जी भी थी। तो मैंने उसी दिन पूछा उनसे, तो बोले देखो जब करना मैं बता देता हूँ, मुझे आता है। बोलते नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ, अहंकार होता है ना, सब आता है। नहीं मुझको सब आता है। बोले ठीक है फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो। तो भी मैंने देखा, तो उस टाइम भी आया नहीं था मुझे, बस इतना पता था, हाँ चलो एक मोती पे एक बार पूरा महामंत्र बोलना और आगे बढ़ना है, खत्म होने के बाद बीट्स को टर्न करना, ये सब इतनी इंट्रिकेसीज नहीं पता थी। तो भी बोले ठीक है आप चालू कीजिए 2 राउंड से। 2 राउंड से आप लोग कितना करते हैं? तो उन्होंने बोला हम 16 करते हैं। ठीक है, आप 16 करते हैं, मैं भी 16 करूँगा। बोले अरे आप 8:45 पे अभी है, आप घर पे पहुँचते
कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे, माला करेंगे। ईगो 16 करूंगा, बोले 16 ही करूंगा। पहले दिन गया, अब रास्ते में बस में पूरा दिन थका हूँ, ड्रेन हो चुका है पूरा दिमाग, जॉब में ट्रैवलिंग हो रखी है, फिजिकली मेंटली दोनों ड्रेन है। माला में हाथ डालते हैं, बस की खिड़की पे लेट के चालू किया, चालू करते 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 माला किए जा रहा हूँ। घर तक पहुंचने, रोड पे भी चल रहा हूँ तो भी माला कर रहा हूँ। फिर घर पहुंचा, मैं खाना खाया, ठंडा जो भी होता है, ठंडा ही खाना मिलता है रात में, कौन गर्म करके देना। खाना खाया फटाफट, फिर माला में लग गया। फिर उसके बाद अब नींद भी आ रही, थका हुआ, सोचा लेट के करूंगा, लेट गया, लेट के माला कर रहा हूँ हाथ डाल के। अब नींद ऐसी में, आधी नींद में देख लिया माला कंप्लीट हो गई, 16 राउंड्स धक्का मार मार के हो गया, माला निकाल दिया। बीच रात में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। मेरी बुआ बाजू में थी, 2 बार उठाने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक खींच के गाल पे लगा, क्या कर रहा है? तो माला बची हुई, माला कहाँ है? माला नहीं है। माला हरि नाम का पावर ये है, सोते हुए व्यक्ति को भी जगा देता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम। यू डोंट हैव टू बी क्वालिफाइड। फर्स्ट टाइम बीट पकड़ा था मैंने, मर्सी डिवोटीज की थी, राधा रासबिहारी की मर्सी थी। दैट्स द पावर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आप लोगों को और एक्सपीरियंसेस देखने हैं तो मैं एंद्र प्रो का एक लास्ट पास टाइम बता के वाइंड अप करता हूँ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट हरि नाम, इट्स ऑल अबाउट एंद्र प्रो। कीर्तन सुनेंगे यदि ना आप, तो एंद्र प्रो का कभी कीर्तन सुनिएगा। He used to chant at least 6 hours a day, 6 to 12 hours a day. चैंट करते थे 6 से 12 घंटा। और जब वो कीर्तन पे बैठते थे ना, his कीर्तन used to be like, यहाँ का है ही नहीं। अब बहुत सारे पंडितों को सुन लेंगे राग लगाते हुए, म्यूजिशियंस को सुन लेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग अभी एंद्र प्रो का कीर्तन सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको आदत है थोड़ा होम बेस का। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, थोड़ा सीजन डिवोटी हो जाएंगे ना, एक बार एंद्र प्रो का कीर्तन सुन लेंगे ना, उसके बाद कोई कीर्तन सुनने का मन ही नहीं करेगा। इट बी एनी कीर्तन, बिकॉज यू कम टू नो व्हाट हिज लाइफ इज। और एंद्र प्रभु ही यूज्ड टू चैंट एंड ही यूज्ड टू क्राई। अब रोते किस लिए थे? चैंट किया एक बार उन्होंने, और चैंट करने के बाद वो रोते रोते एक डिवोटी के रूम में है, और बोले यू नो व्हाट डिड आई सी? तो क्या हो गया? चैंट करते करते he used to see Goloka, used to have that vision. ट्राई करना चाहेगा? हमको क्या देखना है? नया वेब सीरीज कब आ रहा है। हमारा ध्यान उधर है, कब आ रहा है ये सीरीज का पार्ट 2, पार्ट 4। बट इफ आई से यू, once you chant the holy name with that intensity, thinking yourself lowly, praying that hey Radharani, hey Krishna, please be merciful upon me and engage me in your devotional service. When you chant with this mood, we can't even imagine where this holy name is going to take us. Srila Bhakti Vinod Thakur Maharaj writes in Padyavali, this holy name, I pray, like when I chant this holy name, shutting down my eyes, concentrating on this holy name, this holy name takes me to Vraja, where Krishna and the eternal consort Radharani are performing their pastimes, and I'm seeing it live. Goosebumps आते हैं सुनेंगे ना। These are the ecstasies of आचार्यस, जो हमारे लाइन में आ रहा है ना, प्रूफ्स के साथ में। क्यों नहीं ले रहे हम नाम? कोर्स में एनरोल करते हैं आप लोग, किसी कोई बोलता है कि भैया 100% प्लेसमेंट गारंटी, बोल रहा है कोई? हाथ ऊपर कीजिए कोई ऐसा कोर्स किया हो तो। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं, यू टेक दिस होली नेम विद दिस इंटेंसिटी, 100% गोलोक का गारंटीड। इवन टू दैट एक्सटेंट, इससे भी ऊपर प्रभुपाद जाते हैं। प्रभुपाद सेज यू जस्ट फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, स्टे इन द टेंपल, इवन ईट एंड स्लीप इन द टेंपल। आई विल बी स्टैंडिंग एट द बैक डोर ऑफ द गोलोका एंड आई विल टेक यू इन। आगे से जाने का हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, पीछे के रास्ते से प्रभुपाद लेके जाएंगे। ही इज सेइंग दैट, ही इज अश्योरिंग इट। ट्रस्ट है हमको। कितने लोगों को विश्वास है? हाथ ऊपर कीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं हरिनाम? फिर सब तो हाथ ऊपर कर रहे हैं, हरिनाम क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? तो हमारा एक छोटा सा ही, मतलब मैं इसको थोड़ा कंसाइज रखूंगा, हरिनाम की बहुत ग्लोरीज है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, राइट? क्योंकि हरिनाम स्वयं भगवान है, और अनंत शेष के रूप में बलराम जी, जिनके हजारों हजारों फन है, वो क्या बोलते हैं, ये भी कम पड़ जाते जब मैं भगवान की लीलाएं बताता हूँ।
हजारों हजार बताता है, वो अभी तक बता ही रहे हैं भगवान की लीला, रुके नहीं। ऐसा नहीं कि एक पूरा चलो साइकिल हो गया अभी दूसरा वापस से रेपिटेशन रीटेलीकास्ट किया जाए। तो हरि नाम की इतनी महिमा है, लेकिन जब तक आप हरि नाम में टैप इन नहीं करेंगे ना, यू कांट रिलिश इट। यू आर जस्ट लिकिंग द बॉटल ऑफ हनी, नॉट ओपन द बॉटल एंड ट्राई टू लिक द हनी डायरेक्टली। बॉटल को ही चाट रहा है, बोल रहे हैं टेस्ट आ ही नहीं रहा। बॉटल को ओपन करके थोड़ा ट्राई कीजिए, गेट द टेस्ट ऑफ इट, देन यू कैन सी। और आज का एकादशी इज वेरी स्पेशल, यू नो। एकादशी पे भगवान बहुत प्लीज होते हैं जो भी ऑब्जर्व करता है, ही इज वेरी मर्सीफुल। आप लोग जाइए भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है भगवान, लेकिन आप मुझे शक्ति दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। बलराम जी से आपको प्रे करना है, नित्यानंद प्रभु से प्रे करना है कि हम लोग चैंट कर पाए एटलीस्ट 4 राउंड्स, 4 गुड राउंड्स, 4 गुड राउंड्स। मैं भी कभी कभार फोन में लगा राउंड्स कंप्लीट कर लेता हूँ, 16 राउंड पूरे कंप्लीट कर लूंगा, पता नहीं 4 गुड राउंड्स एटलीस्ट। उसके बाद और ऊपर बढ़िए, गो टू 64, 108, 200, 400 जाते रहिए ऊपर, नो लिमिट, बट मिनिमम इज 16 राउंड्स। Start with 4 good rounds at least, right? So I request you all, it's like humble request, you all can, the ball is in your